Yeah. Okay. So see here in this section, what we have to see is the concept of derivative. What do you mean by derivative, and what are its properties, and what is its use? देखो ठीक से, what do you mean by derivative? एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं ये समझने के लिए कि what is the derivative. Okay. See here, if suppose the cost of the suppose एक फंक्शन है या कोई भी एक क्वांटिटी है, सपोज उसको हम y बोलते हैं, y, और उसका एक एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन है सपोज 200 इंटू एक्स. ठीक है, देखो ठीक से, ये एक्सप्रेशन जो है तो वो हमको बताता है कि y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू के 200 टाइम्स है. जिसका मतलब ये होगा कि अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 200 होगा. बिल्कुल. अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 400 बन जाएगा, एंड सो ऑन लाइक दैट. वी कैन अंडरस्टैंड. Okay, so here the y and x are related to each other by this relationship using this equation. Okay, now see, if suppose we are interested in finding at what rate y changes with respect to x, means we want to find out the rate of change of y with respect to x. देखो ठीक से, we want to find out the rate of change of y with respect to x. तो क्या करेंगे, कैसे हम निकाल के लिखाएंगे? तो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर x जो है वो किसी भी अमाउंट से अगर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से y कितना चेंज होता है वो हमको सोचना पड़ेगा. तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि सपोज x का जो वैल्यू है, x और y इन दोनों का अगर एक टेबल हम बनाते हैं, मान लो एक टेबल बनाया, इस तरफ x डाल दिया, इस तरफ y डाल दिया, तो x का वैल्यू है सपोज 1, तो उस समय y का वैल्यू कितना होगा? 200, नो डाउट. अगर x का वैल्यू बन गया 2 तो y का वैल्यू बन जाता है 400. बिल्कुल. अगर सपोज x का वैल्यू 3 बन गया तो उस केस में y का वैल्यू कितना बनेगा? 600. बिल्कुल. Okay, and so on like that. We can continue further and get that the x value, as value of x goes on increasing, we can see that the value of y also goes on increasing in this way, and there is a fixed relationship between y and x which is given by this equation. Okay, so now we'll see what is the change in y. So we want to find out the change in y upon change in x. This ratio we want to find out. तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम देख सकते हैं आराम से, व्हाट इज द चेंज इन y. इसका मतलब है, अब ये सपोज ये दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमने देखा तो व्हाट इज द चेंज इन y वैल्यूज, तो वी कैन फाइंड इट आउट सिंपली. इट्स गोइंग टू बी 400 माइनस 200, करेक्ट है, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द चेंज इन x हियर व्हिच इज गोइंग टू बी 2 minus 1. So 2 minus 1 which happens to be 1. So simply we can say that this 200 upon 1 happens to be the rate of change of y with respect to x, no doubt. So we can say that the y is changing at the rate of 200 with respect to x. बोल सकते हैं ऐसा, no doubt. And one more thing to understand here is that if we suppose find out the rate of change in these values, these two values, देखो ये दो वैल्यूज के बीच में अगर हमने रेट ऑफ चेंज अगर फाइंड आउट किया तो देख सकते हो ठीक से, डेल्टा y upon delta x. In this case, when x changes from 1 to 3, so what we can say is 600 minus 200, which is here to be divided by this 3 minus 1, which happens to be simply 400 upon 2, which is going to be 200 once again. We can see clearly this is same as this one here, and hence we can say that the rate of change of y with respect to x is constant. Even if we find out the rate of change of y with respect to x on this interval also, 3 to 4 वाला जो इंटरवल है, तो भी वही मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे या हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि rate of change of y with respect to x is going to be the same. You can see clearly here it is 800 minus 600,
which is to be divided by 4 minus 3, and that is going to be actually 200 upon 1, which is actually 200, which has to be the rate of change of y with respect to x, no doubt. So here we can see clearly that the rate of change of y with respect to x is constant in this case, because this y and x has this relationship. Okay, so can you tell me what should be the rate of change of y with respect to x if we have a relationship between y and x to be like this? अभी मैं आपको रिलेशनशिप देता हूं, उससे आपको ढूंढ के निकालना है कि what is the rate of change of y with respect to x. Okay, so see here, the first example is y is equal to 5x. Tell me what should be the rate of change of y with respect to x. अच्छा, ये एक बात और कि rate, when we say that the rate of change of y with respect to x, it's called as dy by dx. Remember, okay, dy by dx. When we say that dy by dx का मतलब क्या होता है? ये जो डेल्टा y by डेल्टा x है, तो उसका ही वो लिमिट होता है, लिमिट. उसके बारे में हम देखेंगे बाद में आगे चल के. अभी भी आज के लेक्चर में आगे चल के देखेंगे what is the exact meaning of this dy by dx. बट फिलहाल इतना ही समझ लो कि dy by dx stands for the derivative of y with respect to x, and it has to be the rate of change of y with respect to x. So we can say that if y is equal to 5x, then someone has answered already that dy by dx is actually going to be equal to 5, no doubt. What is this dy by dx? It's called rate of change of y with respect to x. क्योंकि देखो, अगर y x का 5 गुना ज्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब यही हो गया ना कि y is increasing 5 times than x. If x increases by 1, then y will obviously increase by 5. If x increases by 2, then y will increase by 10. That means the rate of change of y with respect to x is going to be 5, no doubt. Okay, can you apply the same logic and tell me what should be the rate of change of y with respect to x if this y is equal to x upon 4? Check. अभी देखेंगे कौन करेक्ट आंसर देता है. Yes, very good. वीर ने करेक्ट आंसर दिया है 1/4. Correct. Very good. So we can see clearly that if y is going to be 1/4 of x, if y is equal to x by 4, then we can easily conclude that dy by dx in this case must be equal to 1/4. Okay, what does it mean? dy by dx equal to 1/4. इसका मतलब क्या? अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि y is increasing at the rate of 5 with respect to x. So इसका मतलब fast कौन है? Who is the faster one? Who is the variable which increases faster? It's y, correct? Because rate of change of y with respect to x is greater than 1. Correct है? Whenever this rate of change is greater than 1, what does it mean? Is that y increases faster than x, no doubt. And whenever this ratio is less than 1, what does it mean? Is actually y increases slower than x. तो इसका मतलब सीधी बात यह है कि जब x जो है वो जब 1 से बढ़ेगा तब जाके y क्या होगा? 1/4 से बढ़ेगा. जब x 4 से बढ़ेगा तब जाके y जो है वो 1 से बढ़ेगा. तो इसका मतलब देखो कहाँ x में चेंज हो रहा है और कहाँ y के अंदर जो चेंज आ रहा है. तो उसमें रेशियो जो है 1:4 का रेशियो है. तो इसका मतलब जब x बहुत ज्यादा चेंज होगा तब जाके y कुछ न कुछ चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा. इसलिए यहाँ पे x जो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 है. और लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? y इंक्रीजेस स्लोली विथ रिस्पेक्ट टू x, नो डाउट. अच्छा, और एक बात हम समझ सकते हैं यहाँ पे. अगर सपोज आपको दे दिया एक एग्जांपल जिसके अंदर बोला कि y इज इक्वल टू सपोज 4x प्लस 2. अच्छा, अभी करके दिखाओ. अभी बताओ कौन करेक्ट आंसर देगा. यस, if y is equal to 4x plus 2, then what must be the rate of change of y with respect to x?
No one? Array, see here. If y is equal to 4x plus 2, then we can say that dy by dx will actually be equal to 4 here. dy by dx will be equal to 4. Why? Because देखो ठीक से, एक बात समझ के लो ठीक से कि अगर सपोज ये y जो है, तो y का वैल्यू अगर x के साथ, अगर x के ऊपर अगर डिपेंड ही नहीं करता, सपोज y इक्वल टू सिंपली 2 है, तो अभी मुझे बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस एक्सप्रेशन के अंदर x है ही नहीं, तो ऐसे केस में dy बाई dx क्या होगा, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना होगा। तो देखो अभी अगर इसका टेबल हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये सपोज x है और ये सपोज इधर y है, तो x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू कितना होगा, ये देखो इधर 2 होगा, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 बनता है तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 2 बनेगा। x अगर वैल्यू 3 बनेगा तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। और इसलिए अगर y x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी बनता रहे तो भी y का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, y will remain constant, and that's why here we can say delta y will be replaced by 2 minus 2 here, which is to be divided by, अगर कोई भी इंटरवल अगर ले लो, सपोज 3 माइनस 1 ले लो, तो वो तो कितना भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 0 अपॉन anything which is actually going to be equal to 0, which means that if y is constant, अगर y कांस्टेंट है तो उसका मतलब वो उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो गया, क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट माना ही वो नंबर जो चेंज ना हो। कोई भी अगर ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0 ही होगा ना, बिल्कुल। तो इसलिए ये देखा जाता है कि whenever the quantity is a constant one, then it doesn't change, that means its rate of change will obviously be equal to 0, no doubt. So just we can split this y, ये जो इक्वेशन हमने अभी देखा यहाँ पे, तो we can split it in two parts. See here, y is equal to 4x plus 2 जब हम कहते हैं तो उसको 4x अलग और 2 अलग ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर सिर्फ y इक्वल टू 4x होता तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना बनता था, 4 बनता था, वो तो है बराबर है, करेक्ट है। बट अगर y इक्वल टू 2 रहता तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना रहना था, वो तो 0 रहता था। ये देखो यहाँ पे जो हमने देखा, तो अगर y इक्वल टू 2 होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज बिल्कुल 0 बनता है। तो इसी रीजन से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर y इक्वल टू 2 है, कांस्टेंट है, तो उस केस में उसका रेट ऑफ चेंज 0 बनता है। इसलिए 2 का रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, 0, और 4x का रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, 4, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल, दैट्स ऑल, दैट्स इट। सो ओके, चलो ठीक है, और एक एग्जांपल तुमको पूछता हूँ, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अच्छा, अभी बताओ what is going to be the derivative of y with respect to 2? Very good, it's going to be 3, correct। okay, अब सपोज अगर तुमको बोला y is going to be actually equal to 3 minus 8x, अभी बताओ what is the derivative of y with respect to x? It's going to be minus 8, check। why? because 3 का जो रेट ऑफ चेंज है वो तो 0 बन गया, बाकी माइनस 8x जो है उसका डेरिवेटिव निकलेगा और वो रहेगा माइनस 8। व्हाट डज इट मीन? in fact y doesn't increase but actually decreases with respect to x, ये इस पूरे का मतलब है। देखो अगर ये पूरा जो है ना, वो अगर हम सपोज थोड़ा ग्राफिकली अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली, तो हम और अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। देखो, let us try to understand this graphically। देखो जैसा कि अभी हमने देखा था कि सबसे पहला एग्जांपल क्या हमने देखा था, तो वो एग्जांपल हमने देखा y इज इक्वल टू 2x, सॉरी 200x, ऐसा देखा था कि नहीं, फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर हमने x एक्सिस और y एक्सिस अगर ड्रॉ किया, तो ये सपोज हमारा x एक्सिस है और ये मान लो हमारा y एक्सिस है। ओके, तो y इक्वल टू 200 इंटू x का ग्राफ कैसे बनेगा, जो टेबल हमने वहां पे देखा था वो टेबल यूज करके अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका ग्राफ आएगा ऐसा बहुत स्टीप, ऐसा ग्राफ आएगा उसका। देखो
मतलब जैसे ही x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक पहुंचता है, तो इसको यहाँ पे कहाँ तक पहुंचना है, y को यहाँ पे 200 तक पहुंचना है, क्योंकि जब x 1 बनेगा तब y को 200 बनना है। तो उसके लिए ये जो इस तरह से ग्राफ बनेगा उसका। और जब ये x का जो वैल्यू है वो जब 2 बनेगा, तो उस समय क्या है, y का वैल्यू तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, 400 बन जाएगा। So we can see that clearly that the y will become equal to 400 when x will become equal to 2 only, and this type of graph will be obtained here in this case. But अभी अगर दूसरा ग्राफ हम देखेंगे ठीक से, ये जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया था जो कि y सपोज इज इक्वल टू x अपॉन 4, ये लिया था ना हमने अभी एग्जांपल एक। तो अभी y इक्वल टू x बाय 4, इसका ग्राफ कैसे होगा बता सकते हो? देखो ठीक से, तो अगर x इस तरफ डाल दिया और y इस तरफ डाल दिया तो क्या होगा, तो समझ सकते हो। अगर x का वैल्यू हमने 4 डाल दिया, देखो ठीक से इसका टेबल कैसे बनेगा, देखो ठीक से, ये x इधर और ये y इधर, तो x का वैल्यू जब 4 बनेगा तब जाके y1 बनेगा, जब x का वैल्यू 8 बनेगा तब y2 बनेगा, जब x का वैल्यू 12 बनेगा तब जाके y का वैल्यू 3 बनेगा, और जब x का वैल्यू 16 तब जाके y का वैल्यू 4, नो डाउट। तो अभी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको x के ऊपर हमको बहुत फास्ट दौड़ना पड़ेगा, ये जब 4 बनेगा तब जाके x जो है वो 1 बनेगा। बस वापस यहाँ पे अगर x का वैल्यू जब 8 बनेगा तब जाके y का वैल्यू 2 बनेगा। तो इसका मतलब देखो हाउ फास्ट y is increasing, not fast, actually it is increasing very slow, and that's why we can draw the graph like this, which is very close to x-axis. What the difference between this graph and this graph we can see here clearly. So we can see clearly that this graph is more steep than this one. ये जो ग्राफ है वो x-axis के ऊपर थोड़ा ज्यादा सोया हुआ है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो वर्टिकल ज्यादा है। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप उसको हम बोल सकते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है समझा ठीक से? स्लोप मतलब अगर समझो कोई एक पहाड़ है, सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, और एक दूसरा पहाड़ है, ये इस टाइप का पहाड़ है मान लो, और तुम सपोज साइकिल लेके यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, ये साइकिल है तुम्हारा और इसके ऊपर तुम चढ़ रहे हो, ओके। अभी सोचो अगर ये साइकिल लेके इस पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ना है, ये इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना इजी है या इस पहाड़ के ऊपर साइकिल लेके चढ़ना इजी है? सीधी बात हम समझ सकते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज द माउंटेन विथ हाई स्लोप। रिमेंबर, हाई स्लोप, हाई स्लोप का मतलब क्या होता है? इट्स इंक्लिनेशन इज वेरी हाई, it's very much inclined, it is more vertical we can say, and this slope is low, इसका जो स्लोप है वो बहुत कम है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लो स्लोप का मतलब क्या होता है कि इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय दिस विद द हॉरिजॉन्टल इज वेरी स्मॉल, एंड दैट्स व्हाई द स्लोप इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। सो स्लोप का मतलब समझ में आया ठीक से? तो स्लोप एक्चुअली मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो उसको याद रखो ठीक से। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है तो वो कैसे डिफाइन किया जाता है? सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारे पास है, और अगर मान लो ये एक ग्राफ है और इसका हमको स्लोप ढूंढना है, तो उसके लिए हमको दो पॉइंट्स चाहिए। अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, समझो ये पॉइंट है ए और दूसरा एक पॉइंट है सपोज बी, तो इस ग्राफ का स्लोप हम कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। देखो अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो सीधा नीचे, तो वो बनेगा यहाँ पे, यस, सपोज इस पॉइंट के x1 y कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, देखो ठीक से ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो सीधी बात है कि इसका जो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? x1, ओके, x कोऑर्डिनेट उसका बन गया x1, और उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना बन गया? तो ये देखो इट्स गोइंग टू बी y1, नो डाउट। नाउ विल सी b पॉइंट का भी अगर सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स अगर बोल दिया, सपोज x2 y2 है, तो उसमें हम देख सकते हैं आराम से कि इस बी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर नीचे, तो वो कहाँ पे मिलेगा उसको? x2 पे, राइट। और बी के ऊपर अगर बी से अगर इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो वो मिलेगा वहां पे y2 के अंदर, करेक्ट है? ठीक है, अभी एक तरफ से हमने अभी जो डेफिनेशन देखा है स्लोप का,
या डेरिवेटिव का, तो dy बाई डी एक्स जिसको हमने बोला था, याद है, dy बाई डी एक्स, उसका डेफिनेशन हमने क्या बोला था, the change in rate of change of y with respect to x, right? So we can find out the change in y upon change in x. डेल्टा मतलब चेंज है, याद रखो ठीक से। तो अगर हमने ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, उसके लिए हमने चेंज इन y ढूंढ के निकाला, और चेंज इन x से उसको अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो ठीक से, व्हाट इज द चेंज इन y व्हेन वी गो फ्रॉम a टू b हियर। तो अगर a से b तरफ जाते हैं तो y में कितना चेंज होता है, ये देखो इतना चेंज होता है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे y2 माइनस y1। समझा क्यों? क्योंकि y2 मतलब ये पूरा डिस्टेंस है, देखो ये पूरा डिस्टेंस, और y1 मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है। तो इस वाले डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस अगर डिडक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिलेगा, बिल्कुल। तो यही तो हमको चाहिए, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इसलिए हम निकालेंगे उसको एज y2 minus y1, no doubt. Okay, what is the change in x here? So let's see here, x1 का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, और x2 का मतलब ये डिस्टेंस हो गया। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस अगर हम माइनस करेंगे तो हमको कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, जरूर ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, करेक्ट है। तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो हमको चाहिए तो वो है एक्चुअली x2 माइनस x1, करेक्ट है। तो ये हमारा मिल गया rate of change of y with respect to x, no doubt. But actually we can find out this to be equal to, see, अगर हमने ये एक ट्रायंगल अगर कंप्लीट किया, यहाँ पे ए बी, और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके अगर इसको यहाँ पे मिलाया और उसको अगर सी नाम दे दिया, ठीक है, तो इस सी का जो है ये इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो तो ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड सेम है कि नहीं। तो इसलिए हम इस साइड को क्या बोल सकते हैं, ये देखो ये वाले साइड को हम क्या बोल सकते हैं, y2 माइनस y1 बोल सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। चलो अभी, और ये जो साइड है नीचे वाला AC जो है, AC उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1, वही तो है वो। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं आराम से कि ये जो y2 माइनस y1 है वो एक्चुअली BC है, और x2 माइनस x1 जो है वो एक्चुअली AC है, करेक्ट है। तो इसलिए हम इसको अगर लिखेंगे उस फॉर्म में तो हमको मिल जाएगा BC अपॉन AC, ओके, BC अपॉन AC, no doubt. So that we can say this will be BC upon AC. But just think, what is this BC upon AC? This BC is going to be the opposite side of this thing, angle theta. And it's okay if we call this angle theta or this angle as theta, no problem. So here we can see that this theta is going to be this angle. तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो BC है, करेक्ट है, और एडजेसेंट साइड कौन है, AC है, राइट। and then BC upon AC ratio will be expressed as tan theta here, no doubt. So here we can see that this is called as tan theta, and therefore we can say that this tan theta actually is called as the slope of the graph, the slope of this line, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप मतलब क्या, tan theta, tangent of the inclination, inclination मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस। तो किसी भी लाइन का एंगल अगर x एक्सिस के साथ अगर बना हुआ अगर हमको पता है तो इन शॉर्ट हमको क्या पता है, उसका स्लोप पता है, और स्लोप पता है मतलब इन शॉर्ट हमको क्या पता है, tan थीटा मतलब ही उसका डेरिवेटिव पता है। तो इस तरह से हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया डेरिवेटिव निकालने का। अगर दो पॉइंट्स हमारे पास है या इक्वेशन अगर है उसके पास उसके साथ, तो फिर तो हम डेरिवेटिव निकाल ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर सपोज हमारे पास इक्वेशन नहीं भी है तो भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो देखो ठीक से, उसके लिए हमको यहाँ पे ये जो है tan थीटा निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको पूछा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, yes, what is the derivative of a graph if its inclination with the x-axis is 30 degree, तो क्या कहेंगे बताओ, what is the derivative of this type of line? We can get it easily because we know that the formula, what is the formula, डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ये देखो यहाँ पे जो हमने प्रूव किया dy by dx is actually equal to tan theta. Remember this tan theta is the formula for finding the derivative. Okay, so if we want to find out this
tan theta, then what we can get here is tan 30 actually, and tan 30 we know it is equal to 1 by root 3, correct है? And that's why we can say that this tan theta means 1 by root 3 will actually be the derivative, no doubt. अगर उसी लेवल पे, उसी जगह पे अगर हमारे पास और एक लाइन है जिसका एक्स एक्सिस के साथ अगर 60 डिग्री इतना एंगल बनता है, तो फिर उसका डेरिवेटिव कितना बनेगा? इस लाइन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, dy by dx, we know it is actually equal to tan 60, correct है? Tan 60 which is going to be actually root 3. If suppose there is a line which is inclined at 45 degree angle, then tan 45 is 1. So we can say that its derivative is going to be 1, no doubt. तो ये बात जो है ये हम समझ सकते हैं आराम से कि डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअली tan थीटा, ये उसका दूसरा फॉर्मूला बनता है. एक फॉर्मूला कौन सा है उसका? पहला जो हमने देखा y2 minus y1 upon x2 minus x1, और वी कैन से डेल्टा y upon डेल्टा x. ये भी एक तरह से एक फॉर्मूला है, नो डाउट, लेकिन ये दूसरा फॉर्मूला है उसका, नो डाउट. ओके, और थोड़ा हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो ठीक से, सपोज वी हैव ग्राफ ऑफ अ लाइन which is y is equal to 2x plus 4. ओके, ये सपोज एक इक्वेशन है. हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस लाइन? तो देखो ठीक से, ये जो लाइन है, ये लाइन इसका y इंटरसेप्ट 4 है और इसका जो स्लोप है, मतलब ये जो x का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, तो इसलिए इसके ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे, तो वो पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करते हैं सपोज, तो देखो इधर x और y ये दोनों अगर प्लॉट करते हैं, x के वैल्यूज और y के वैल्यूज प्लॉट करके देखो फटाफट. अगर x का वैल्यू 1 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा? डालो यहाँ पे 1, तो वो बनता है 6, नो डाउट. अगर x का वैल्यू ले लिया 2, तो y का वैल्यू कितना बनता है? देखो 2 2 4 plus 4 8, राइट, नो डाउट. Then again if x is 3, then y will be 10, right? Then again if x is 4, then y will be actually 2 are 8 plus 4, it's 12, right? So if we plot all the points here, then we can get a straight line like this, and this straight line will actually be having the slope. So what is the slope of that graph? How can we find out that derivative of y with respect to x in this case? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालेंगे? ढूंढो इसमें से कोई भी इसका दौर का रेशियो ले लो. तो देखो अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? 8 minus 6 upon it is 2 minus 1, which is going to be 2 by 1, which is going to be 2 only. So derivative is 2, no doubt. Even if we find out it from this interval also, 3 to 4 वाला इंटरवल से भी अगर निकालते हैं तो भी वही आने वाला है. 12 minus 10, that is divided by 4 minus 3, no doubt, which is going to be 2 divided by 1, which is 2 simply. So we can find out the derivative from any interval. So dy by dx can be found out from any interval. If we choose to find the derivative from this whole interval, complete interval, then also we can do it easily. तो 6 से लेके 12 तक कितना फर्क पड़ गया, कितना डिफरेंस हो गया? 12 minus 6, which is going to be 6 only. एंड 1 से लेके 4 तक कितना डिफरेंस आ गया? तो देखो 4 और 1 में कितना डिफरेंस है, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 minus 1, which is actually going to be 6 upon 3, which is again going to be 2, correct है? So in this case this graph has the derivative 2. So in short we can see clearly that this coefficient of x is going to be the derivative every time. ये बात एक समझ में आई सबको ठीक से कि in most of the cases what happens is the derivative of y with respect to x happens to be the coefficient of x in this case. For example, if we have another equation, suppose y is equal to suppose 10x minus 1, what is going to be the derivative of y with respect to x? Then simply we can find it out, simply 10, correct hai? Because the coefficient of x here is going to be 10, no doubt. If suppose y is actually minus 3x, check. Now what is the derivative? Yes, dy by dx will actually be equal to minus 3 here. What does this minus sign tells us now? See here, अभी इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा पता है? देखो ठीक से, अगर हमने वैल्यूज प्लॉट किए, देखो ठीक से, x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर हमने प्लॉट किया, x के बदले ले लो 1,
तो y कितना बनेगा -3, करेक्ट है। ओके, x का वैल्यू अगर ले लिया 2 तो y कितना बनेगा -6 फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली। नेक्स्ट इज if x is 3 then y will be -9 and so on like that. So only 2 points is also sufficient, but if we plot the graph, how will it look like? तो देखो dy by dx इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 1, -3. वेयर इज दिस पॉइंट लोकेटेड? सी हियर 1, -3, here it is the point. Okay, then again 2, -6, where it is 2, -6. ये देखो 2 और ये -6, राइट। तो यहाँ पे वो लोकेटेड होगा क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा होगा। चलो ठीक है, द नेक्स्ट इज अगेन इज दैट सी द ऐसे ही पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते जाएंगे, ऑब्वियसली ओरिजिन विल आल्सो बी देयर बिकॉज व्हेन x विल बी 0 y विल आल्सो बी 0, no doubt, because minus of 0 is 0 only, so origin is also there. So if we join all these points, then we can get a simple straight line which is passing through all these points like this type of straight line will be obtained here as a graph of this equation, right? And this graph actually tells us something, that y is actually decreasing with respect to x, whereas if we see it here, then we can see that y is increasing with respect to x. But if suppose y is decreasing like this, अगर y जो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव y का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेरिवेटिव का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का नेगेटिव होने का मतलब ये है कि y decreases as x increases. Remember, this simple is the meaning of negative derivative. Remember, whenever the derivative is negative, it means that y actually decreases as x increases. अगर x increase होगा तो y decrease होगा, अगर x decrease होगा तब जाके y increase होगा, ये भी उसमें आ गया बिल्कुल। तो ये बात अच्छी तरह समझ लो ठीक से कि डेरिवेटिव इज नेगेटिव मींस y is decreasing with respect to x. Okay, one more question. Suppose we have the equation y is equal to 3 minus 2x. Now just answer all of you and tell me what should be the derivative of this y with respect to x here. Yes, very good, -2, correct. So dy by dx will be actually equal to -2. Okay, if suppose y is going to be equal to x minus 20, find out the derivative of y with respect to x. Check. Yes, 1. Very good. So डेरिवेटिव का जो मतलब है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इफ सपोज y इज सिंपली इक्वल टू 2x minus 15. अभी चेक करो, what is the derivative of y with respect to x? It's 2 simply, no doubt. But if suppose y is equal to अभी देखो ये थोड़ा केयरफुली करो, अभी कुछ एग्जांपल्स में देता हूं आपको, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट केयरफुली. Okay, y is equal to 2 times of 3x minus 5. Just tell me what is the derivative of y with respect to x. Very good, 6. Just orally we can just expand this bracket and get the derivative easily. Okay, suppose y is equal to 2 minus x into 4. Check what is the derivative of y with respect to x. It's going to be -4. Very good, because this can be expressed as 8 minus 4x, right? And when we say that this is going to be 8 minus 4x, so its derivative must be -4. So this is the concept of derivative. But अभी ये देखो, अभी इसमें हमने अभी तक कोई भी इक्वेशन ऐसा हमने नहीं देखा इसके अंदर y is equal to x square हो, या y is equal to x cube हो, या y is equal to x raised to 4 हो. इस टाइप के फंक्शंस जो है वो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, करेक्ट है? तो लेट अस सी दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस
and how to find out their derivatives next time. Okay, तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, how to find out the derivative of this type of functions will be a question which will be solved next in next lecture. So remember and just make clear all these concepts here in this lecture, today's lecture. तो आज के लेक्चर में जो भी हमने देखा वो पूरा क्लियर करके रखो और सब ठीक से रिवाइज करो, ताकि नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट टाइम जो भी हम देखेंगे वो हमको और अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, सो सबसे पहले ये याद रखो ठीक से कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स, इट इज द रेट ऑफ चेंज। मैं कल पूछने वाला हूँ व्हाट इज डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहना चाहिए, इट इज द रेट ऑफ चेंज। whenever we require to find the rate of change of one quantity with respect to other, we are going to find out the derivative, remember. And also when we talk about the derivative of y with respect to x, then it means the rate of change of y with respect to x, no doubt. When we say the rate of change of displacement with respect to time, then it stands for, if we are representing the displacement as s and time as t, then rate of change of displacement with respect to time stands for ds by dt, remember. If we talk about the rate of change of velocity with respect to time, then we can say it will be dv by dt, where v stands for velocity, remember. So all these are the derivatives. Even in Newton's second law, you must be heard about the rate of change of momentum. What is the Newton's second law of motion? It tells us simply that the rate of change of momentum is equal to the force, and it takes place in the direction of the force. So when we talk about this rate of change of momentum, if momentum is denoted by p, then we can say that the rate of change of momentum means dp by dt, remember. dp by dt stands for rate of change of momentum. Even when we talk about the rate of change of work done or energy, then we can get it as du by dt, remember. So whenever in physics we come across the rate of change, ये जो rate of change जो होता है, ये word जब हम आता है हमको, तो उस केस में हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, याद रखो ठीक से। तो डेरिवेटिव माना ही rate of change, remember. Okay, so let us stop this lecture here. Okay, thank you all of you.